Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I will be starting today with transformations, and in your syllabus, transformations are divided into four categories. Number one, translation. Number two, reflection. Number three, enlargement. Number four, rotation. These are the four transformations that are part of your syllabus. 2 साल पहले तक स्ट्रेचिंग और शेयरिंग भी हुआ करता था, लेकिन अब से सिर्फ यही 4 चीज़ें आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन में शामिल हैं. सो एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली एक एक कॉन्सेप्ट उसकी निटी-ग्रिटीज़ में जाता रहूँगा, इसलिए परेशान मत होइएगा. सो पहली चीज़, ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का मतलब होता है टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसलेशन मीन्स to move an object from one place to another without changing its size, shape or orientation. ठीक है जी. An object is translated through translation factor. An object is translated through translation factor, and सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इमेज यानी जिस पे हमें फिगर पे पहुंचना है, इज ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन फैक्टर. इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्लस द ट्रांसलेशन फैक्टर. सो हम एक एक करके एग्जांपल्स करते हैं और चीज़ों को आइडेंटिफाई करते चले जाते हैं. सपोज करें ये x और ये y एक्सिस आपको पता है. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. लेट्स से आपको बोला है a triangle ABC has vertices A 2, 1, B 5, 1, C 3, 3. It is mapped onto triangle PQR by translation with translation factor 2. Draw and label PQR. अच्छा जी, जो ट्रांसलेशन फैक्टर है वो इस तरह दिया होता है, एक्स वाई, यानी मूवमेंट
along x-axis and movement along y-axis. Movement along x-axis and movement along y-axis. So the vertices are 2, 1, ये A है, 5, 1 ये B है, 3, 3 ये C है. So triangle ABC has these vertices. Triangle ABC has vertices A 2, 1, B 5, 1, C 3, 3. It is mapped onto triangle PQR by translation 2, 2. तो अब एक एक फिगर को ट्रांसलेट करें. A 2, 1 है प्लस ट्रांसलेशन 2, 2 विल बिकम 4, 3. ये हो जाएगा P. 4, 3. This is P. I hope everyone is following me. Then B is 5, 1 plus 2, 2 is 7, 3. This is Q. Q is 7, 3. Then there is R, which is C. 3, 3 will be transformed by 2, 2 and this will become 5, 5. This is R. So 5, 5. So this is the transformed figure. ABC is mapped onto PQR by translation factor 2, 2. I hope this is clear. ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है. समझ में आ गया सबको? मैंने इसको 2, 2, इसको 2, 2 और इसको 2, 2 से ट्रांसलेट कर दिया. ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन इज इक्वल टू इमेज का फॉर्मूला लगा के और मेरे पास PQR आ गया. Let's do another example. Let's say आपको बोला है a triangle ABC with vertices A 3, 2, B 7, 2, C 5, 4 is mapped onto triangle XYZ by translation factor -2, 3. Draw and label ABC and XYZ. So हम इसको ड्रॉ करने बैठते हैं. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the vertices of triangle ABC are
3,2, 7,2, 5,4. This ABC is mapped onto XYZ by translation factor -2, 3. So एक एक करके ट्रांसलेट करो. 3 to object plus translation is equal to image. 3 minus 2 is 1. 2 plus 3 is 5. This is X. B is 7, 2. Minus 2, 3 is 7 minus 2 is 5. 5. This is Y. C, which is 5, 4 plus minus 2, 3 is 3, 7. Z. So let's make the image 1, 5, 5, 5, and 3, 7. Z. I hope I am clear. This is the object and this is the image. So इस तरह ट्रांसलेट हो जाता है एक फिगर ऑब्जेक्ट से इमेज में. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. गिवन दैट triangle A 1, 4, B 5, 4, C 3, 1 is mapped onto triangle DEF by translation with translation factor -3, -2. Draw and label ABC and DEF. ठीक है जी. So let's try and do this. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3. So 1, 4 is A, 5, 4 is B, 3, 1 is C. I hope सब follow कर रहे हैं. Is mapped onto DEF by translation with the translation factor -3, 2. So 1, 4 plus -3 -2 is -2, 2. ये A था जो D बन गया.
बी 5 4 -3 -2 इज 2 2, ये ई बन गया। और सी 3 1 -3 -2 0 -1, ये एफ बन गया। आई होप सब फॉलो कर रहे हैं। सो -2 2 -2 2, ये डी बन गया। 2 2, ये ई बन गया। 0 -1, ये एफ बन गया। आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग मी। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, आई होप सबको समझ में आ रहा है। दिस इज हाउ यू ट्रांसलेट एन ऑब्जेक्ट टू इमेज। सो सबसे पहली चीज़ जो ट्रांसफॉर्मेशन में थी वो ट्रांसलेशन थी। ट्रांसलेशन का मतलब है टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, साइज और ओरिएंटेशन। ना शेप चेंज हुआ, ना साइज चेंज हुई, ना ओरिएंटेशन चेंज हुआ। ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब है यूं था यूं हो गया तो ओरिएंटेशन बदल जाएगी, ऐसा नहीं हुआ यूं था तो यूं ही रहा, सिर्फ जगह बदली है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज ट्रांसलेशन। हमने ट्रांसलेशन फैक्टर अप्लाई किया। ट्रांसलेशन फैक्टर एक्स वाई होता है, ये मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस होती है, ये मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस होती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। आपके सिलेबस में तो लिखा हुआ है कि आपको रिफ्लेक्शन अलोंग एनी लाइन आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन मीन्स that the object is reflected from a given line of reflection such that the shape, size and area does not change, but sometimes the orientation changes। क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है तो कभी कभी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। रिफ्लेक्शन मीन्स ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सच दैट द शेप, साइज एंड एरिया डज नॉट चेंज, बट समटाइम्स द ओरिएंटेशन चेंजेस। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम the line of reflection is always equals to the image distance from line of reflection. The object distance from the line of reflection is always equals to the image distance फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अग्रीड। आपके सिलेबस में तो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन अलोंग एनी लाइन आपको करना आनी चाहिए, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने रिफ्लेक्शन को 5 कैटेगरीज में ब्रेक किया है। आई हैव डिवाइडेड रिफ्लेक्शन इनटू 5 कैटेगरीज फॉर योर कन्वीनियंस। नंबर 1, रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। नंबर 2, रिफ्लेक्शन along y axis. Number 3, reflection along line y is equals to x. Number 4, reflection along line y is equals to minus x. Number 5, reflection along any अदर लाइन। आपके सिलेबस में बोला है रिफ्लेक्शन अलोंग एनी लाइन, मैंने इसलिए इसको इन 4 कैटेगरीज में ब्रेक किया क्योंकि यूजुअली सवाल इन 4 कैटेगरीज में से आता है। बहुत देर ऐसा होता है कि इन 4 के अलावा कुछ हो। सो आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको 5 कैटेगरीज में ओवरऑल ब्रेक किया है। 4 ऐसी कैटेगरीज हैं जो एग्जाम में यूजुअली आती हैं, और कैटेगरी नंबर 5 इज व्हाट इज रिटन इन द सिलेबस।
So let's do it one by one and clarify our concepts. Number one, reflection along x axis. अब मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, सिर्फ ये ट्रिक अप्लाई करेंगे खुद ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा. When reflecting along x axis, the x coordinates do not change, but the sign of y coordinate changes. Simple as that. When you reflect along x axis, the x coordinates do not change, but the sign of y coordinate changes. Let's do it. आपको समझ में आ जाएगा. Let's say आपको बोला है the triangle ABC, A 2,1, B 5,1, C 4,3 is mapped onto triangle DEF by reflection along x axis. Draw and label ABC and DEF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. So triangle ABC has vertices A2, 1, B5, 1, C4, 3. So this is triangle ABC, which is the object. It is mapped onto triangle DEF by reflection along x-axis. मैंने क्या सिखाया? When something is reflected about x-axis, the x coordinates will not change, sign of y coordinate will change. यानी A जो कि 2,1 था will become D, that is 2, -1. The x coordinate will not change, the sign of y coordinate will change. जो B 5,1 था वो बन जाएगा 5, -1. 5, -1. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं. और जो C था 4,3 वो F बन जाएगा 4, -3. This is the image. I hope everyone is following me. When a figure is reflected about x-axis, the x coordinates do not change. आप नोट करें x coordinates change नहीं हुए. The sign of y coordinate changes. 2,1 2, -1 हो गया, 5,1 5, -1 हो गया, 4,3 4, -3 हो गया. I hope this is clear. This is how you reflect along x-axis. जब भी आपको x-axis पे रिफ्लेक्ट करना होगा, x कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे, साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगी और ये रिफ्लेक्शन होगी. सिंपल है. नेक्स्ट देखते हैं. रिफ्लेक्शन along y axis.
when reflecting along y-axis, the y coordinates do not change. The y coordinates do not change. The sign of x coordinate changes. When reflecting along y-axis, the y coordinates do not change. The sign of x coordinate changes. यानी y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और x कोऑर्डिनेट की साइन चेंज हो जाएगी. ठीक है जी. सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल. लेट्स से आपको बोला है द ट्राइंगल ABC is mapped onto triangle PQR by reflection along y-axis. Coordinates of ABC are A 3,1, B 3,5, C 5,2. Draw and label ABC and PQR. One, two, three, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 3,1, 3,5, 5,2. ये ऑब्जेक्ट है 3,1, 3,5, 5,2. इट इज रिफ्लेक्टेड अबाउट y एक्सिस. जब रिफ्लेक्टेड अबाउट y एक्सिस होगा तो क्या होगा, जो 3,1 था ये रिफ्लेक्ट होके -3,1 हो जाएगा. मैंने क्या सिखाया, मैंने बोला व्हेन रिफ्लेक्टिंग अलोंग y एक्सिस द y कोऑर्डिनेट्स डू नॉट चेंज, द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट चेंजेस. द y कोऑर्डिनेट्स डू नॉट चेंज, साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट चेंजेस. तो ये a था जो p बन गया, जो b था 3,5 वो q बन गया -3,5, और जो 5,2 था ये -5,2 बन गया. सो -3,1 is p, -3,5 is q, and -5,2 is r. This is the image. I hope everyone is following me. So reflection along x axis होता है तो साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट चेंज होता है. रिफ्लेक्शन along y axis होता है तो साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट चेंज होता है. क्लियर है. तीसरी बात is reflection along line y is equals to x. Reflection along line y is equals to x. When performing reflection along line y is equals to x,
the x and the y coordinate interchange their places. When performing reflection along line y is equal to x, the x and the y coordinate interchange their places. That is, x becomes y and y becomes x. So जब रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y इज इक्वल टू x होगी, फिर हमें नहीं सोचना, फिर हमें मेहनत नहीं करनी, हमें सिंपली क्या करना है, the x and the y coordinate will interchange their places. That is, the x coordinate becomes the y coordinate and the y coordinate becomes the x coordinate. ठीक है जी. Let's do an example and let's clarify the concept. Let's say आपको बोला है triangle A 2,3, B 5,3, C 4,6 is reflected onto the triangle XYZ by reflection along line y is equals to x. By reflection along line y is equals to x. Draw and label ABC and XYZ. ठीक है जी. So let's try and do it. One, two, three, four, five, six, seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,3. 5,3. 4,6. 2,3, B 5,3, C 4,6. सो जो ये 2,3 है ये बन जाएगा 3,2. कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाएंगे. ये जो B है जो कि 5,3 है ये बन जाएगा 3,5. और ये जो C है 4,6 ये बन जाएगा 6,4 Z. So 3,2, 3,2, 3,5, 3,5, 3,2, 3,5 and 6,4. So after reflection along line y is equal to x, ये कुछ इस तरह हो गया. I hope you are following me. So when you reflect along line y is equal to x, the coordinates interchange their places. X becomes y, y becomes x. I hope this is clear. I hope सबको समझ में आ गया. Let's say एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं. Let's say
4, 1, 6, 1 and 5, 2. ठीक है जी, ये है ABC ऑब्जेक्ट। इसको रिफ्लेक्ट करना है लॉन्ग लाइन y इज इक्वल टू x। इसको रिफ्लेक्ट करना है लॉन्ग लाइन y इज इक्वल टू x। अग्री? सो क्या होगा, ये जो 4, 1 था ये बन जाएगा 1, 4। ये जो 6, 1 था ये बन जाएगा 1, 6। और ये जो 5, 2 था ये बन जाएगा 2, 5। लेट्स चेक। 4, 1 will become 1, 4. 1, 4. 6, 1 will become 1, 6. और 5, 2 will become 2, 5. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं। और ये हो गया इमेज। तो ये ABC था, और अगर ये PQR था तो ये P, ये Q और ये R। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। व्हेन रिफ्लेक्टिंग अ लॉन्ग लाइन y इज इक्वल्स टू x। समझ में आ गई बात? अगली चीज इज रिफ्लेक्शन अ लॉन्ग लाइन y इज इक्वल टू -x। रिफ्लेक्शन along line y is equals to -x. When reflecting along line y is equals to -x, the coordinates interchange their places and even their sign changes। यानी कि x, y will become -y, -x। that is x becomes -y and y becomes -x। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज नहीं होते, उनकी साइन भी बदल जाती है when reflecting along line y is equals to -x। I hope this is clear. When reflecting along line y is equals to -x, the coordinates interchange their places and their signs changes। जब y is equals to x था तो कोऑर्डिनेट सिर्फ इंटरचेंज करते थे their places। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज भी करेंगे और उनके साइन भी चेंज करेंगे। I hope I am clear. So let's look into greater detail. So if you are told that the vertices of triangle A 2, 3, B 4, 3, C 3, 5 are reflected along line y is equal to -x to PQR. Draw and label ABC and PQR.
आपको ए बी सी के वर्टिसेस बताए हुए, आपको रिफ्लेक्शन बता दी है कि लॉन्ग लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, और आपको बोल रहा है कि पी क्यू आर बनाओ. सो लेट्स डू इट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 and 6. So triangle ABC has vertices A 2, 3, B 4, 3 and C 3, 5. This is triangle ABC. It is reflected along line y is equals to minus x. Yani A 2, 3 will become P -3, -2. B 4, 3 will become Q, that is -3, -4. C, that is 3, 5 becomes R, which is -5, -3. द कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज भी हो रहे हैं और उनकी साइन भी बदल रही है. सो 2, 3 विल बिकम -3, -2, -3, -2, -3, -4, 4, 3 will become -3, -4, 3, 5 will become -5, -3, -5, -3. सो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज हो गया. आफ्टर रिफ्लेक्शन अ लॉन्ग लाइन y इज इक्वल्स टू -x. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं. सो रिफ्लेक्टिंग अ लॉन्ग लाइन y इज इक्वल टू -x में the x and the y are coordinates are interchanging their places and even their sign changes. रिफ्लेक्शन की आखिरी बात, reflection along any other line. While reflecting along any other line, the object distance from line of reflection should be equals to the image distance from line of reflection calculated perpendicularly. Calculated perpendicularly यानी perpendicular distance of the object from line of reflection should be equals to perpendicular distance of the image from line of reflection. बात समझ में आई? While reflecting along any other line, the object distance from line of reflection should be equal to the image distance from the line of reflection when calculated perpendicularly, यानी perpendicular distance of the object
from line of reflection should be equal to the perpendicular distance of the image from line of reflection. अभी करते हैं कुछ सवालात तो क्लियर हो जाएगी बात. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10. 1 2 3 4 5 6. लेट्स से आपको बोला है 2,1 2,5 and 4,1 are the vertices of triangle ABC. Agreed? Triangle ABC is reflected from line x is equals to 6. ये लाइन x is equal to 6 है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो मैं सिंपली काउंट कर लूँगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. ये वाला पॉइंट एक दो स्पेस लेफ्ट पर है, यानी दो स्पेस लेफ्ट फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो दो स्पेस राइट फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन चला जाएगा और मैं इसको सी डैश बोल रहा हूँ. ठीक है, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ है, तो ये 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा. 1 2 3 4. Object distance is 4 spaces left from line of reflection. So image distance will be 1 2 3 4 spaces right from line of reflection. I hope everyone is following me. So this is the image. I hope follow कर रहे हैं सब लोग. Let's say line of reflection let's say line of reflection ये होती. y इज इक्वल टू -2 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती. तो अब हम लोग काउंट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. 1 2 3. सो इमेज डिस्टेंस विल बी 1 2 3. ये हो गया ए. लेट्स से मैं इसको ए डबल डैश बोल रहा हूँ. 1 2 3. सो दिस विल बी 1 2 3. सी डबल डैश. 1 2 3 4 5 6 7. The object distance from line of reflection of B is 7 units up. So reflection will go 7 units down. 1 2 3 4 5 6 7. B double dash. So this is image. Are you all with me? So जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. आई होप दिस इज क्लियर. समझ में आया? ये इमेज है इसका व्हेन रिफ्लेक्टेड अलोंग लाइन y इज इक्वल्स टू 2 और ये इमेज है इसका व्हेन रिफ्लेक्टेड अलोंग लाइन y x इज इक्वल्स टू 6. आई होप दिस इज क्लियर. एक और एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए. लेट्स से आपको बोला है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन -1 -2 -3 1 2
3, 4, 5. Let's say 3,1, 6,1 and 6,3 are the vertices of a triangle. ये ऑब्जेक्ट है, सही। अब there is this line, let's say this there is this line which passes through the point 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 and so on. This is this line, and this is the line of reflection, which is, let's say, y is equals to x plus 1. अब मुझे इमेज निकालना है, तो अब इसका इमेज कैसे निकालूंगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि आप ये देखेंगे क्या है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स. दिस पॉइंट इज 3 boxes here from the line of reflection. The object is 1 box, 2 box and 3 boxes away. So 1 box, 2 box and 3 boxes away is the image. सब फॉलो कर रहे हैं? सिमिलरली ये देखें, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, 4 बॉक्स. अग्री? सो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स एंड 4 बॉक्स इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन. 4 बॉक्सेस, ये एक, ये दो, ये तीन, ये 4. सो ये एक, ये दो, ये तीन और ये 4, 4 बॉक्सेस अवे. सब फॉलो कर रहे हैं? सिमिलरली दिस, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्सेस अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boxes away from the line of reflection. I hope everyone is following me. So this is 6, this is 7. So the triangle will be this. After being reflected, this is the image, and the vertices of the image is 0, 4, 0, 7 and 2, 7. समझ में आया? अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसी वर्टिकल लाइन थी तो मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस चेक कर लिए. लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो मैंने वर्टिकल डिस्टेंस चेक कर लिए. लेकिन अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन टेढ़ी लाइन है, इट्स अ लाइन विच इज़ अ स्लांट लाइन, सो परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस of the object from line of reflection will be equals to perpendicular image distance from line of reflection. अब ये perpendicular object distance और image distance निकालने के लिए मुझे सिंपल करना ये है कि मुझे बॉक्सेस काउंट करने हैं perpendicularly. तो ये एक बॉक्स, ये दो बॉक्स,
ये 3 बॉक्स. सो द इमेज विल बी 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स अवे. सब फॉलो कर रहे हैं? इसी तरह ये वाला 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स. सो द इमेज डिस्टेंस विल बी 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्सेस अवे. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं. इसी तरह ये जो लास्ट वाला पॉइंट रह गया ये वाला, इसका डिस्टेंस नापो. 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस अवे. सो दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस अवे. Hence this is the image. आई होप सबको समझ में आ गया. सो सबसे अच्छा तरीका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का इज टू कैलकुलेट बॉक्सेस फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वर्टिकल लाइन है इस तरह की, तो बॉक्सेस काउंट करना बहुत आसान है. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. आर यू ऑल विद मी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसी तरह अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ये है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बॉक्सेस काउंट करना आसान है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अग्री? लेकिन जब लाइन इस तरह स्लांट लाइन हो तो बॉक्सेस काउंट करने का तरीका होता है कि आप बॉक्सेस को यूं काउंट करते हैं, डायगनली काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर ये पॉइंट 6 बॉक्सेस अवे फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये पॉइंट भी 6, ये हाफ, ये हाफ. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Are you all with me? So this is how you count the boxes from the line of reflection. I hope I am clear to all of you. I hope सबको समझ में आ रहा है. So in this video lecture I discussed 2 types of transformations. We did translation, which is XY, that is movement along x-axis, and movement along y-axis. And हमने सीखा that object plus translation is equals to image. रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन की आसानी के लिए मैंने रिफ्लेक्शन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी. रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स डू नॉट चेंज, ओनली द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस. रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, जिसमें वाई कोऑर्डिनेट डू नॉट चेंज, साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट changes. Reflection along line y is equals to x. X comma y will become y comma x. The coordinates interchange their places. Coordinates interchange their places. And जब line y is equals to minus x होती है तो coordinate interchange their places and their sign changes. और एनी अदर लाइन हो अगर तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन should be equals to image distance from the line of reflection perpendicularly. तो अगर लाइन ऐसी है तो ऐसे बॉक्सेस काउंट करेंगे, लाइन ऐसी है तो इमेज डिस्टेंस के लिए ऐसे बॉक्सेस काउंट करेंगे, और अगर लाइन ऐसी है तो हम बॉक्सेस को डायगनली काउंट करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड ट्रांसलेशन एंड रिफ्लेक्शन. So the first part of transformation concepts and examples, I have only discussed translation and reflection, and I have told you the tricks to solve those questions. तो आपको मेहनत नहीं करनी, आपने ट्रिक्स अप्लाई करनी है, झटपट आंसर्स आएंगे.
उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग इनलार्जमेंट एंड रोटेशन. सो आई